Hello students, today I am going to solve the question paper released by the CBSE for the session 2022, and the first question is find the value of A25 minus A15 for the AP 6, 9, 12, 15. So this is your question. So AP क्या है 6, 9, 12, 15 और A25 minus A15 we have to find. So this is our AP. Your first term is 6 and D is A2 minus A1. So it is 9 minus 6 equals to 3, and we have to find A25 minus A15. तो पहले हम लोग A25 फाइंड कर लेते हैं. A25 formula is A plus n minus 1 D. A is 6, put the values. N is 25 because we are going to find out the value of 25th term. So 25 minus 1 multiplied by D, which is 3. So it comes out to be 6 plus 24 multiplied by 3, and it is 6 plus 24 multiplied by 3 will be 72. So it is 78. And similarly we can find a 15th term. So putting the values for A15 in this formula only, so it will be 6 plus 25 minus not 15, because we are going to find the value for the 15th term. So 15 minus 1 multiplied by 3, it is 6 plus 14 multiplied by 3. So it will be 6 plus 14 multiplied by 3 is 42. So it comes out to be 48. Okay, so A25 is 78, A15 is 48. So we have to find the difference of these two terms. So A25 minus A15 is equals to 78 minus 48 equals to 30. So this is the answer for the question number first. Now we shall be solving the second option of the first question. The second option for the first question is if 7 times the 7th term of the AP, तो 7th term का 7 times लेना है is equal to 5 times the 5th term, then find the value of its 12th term. तो हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे. पहले क्वेश्चन क्या है उसको हम क्लियरली समझ लेते हैं. सो 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म, तो 7th टर्म क्या होती है? 7th टर्म की वैल्यू आएगी a प्लस 60. अगर आप इस फॉर्मूले में विच इज़ ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी में वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास 7th टर्म की a प्लस 60, बिकॉज यहाँ पर 7 माइनस 1 6 हो जाएगा तो 60. तो आप हमेशा के लिए ये एक शॉर्टकट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि 7th टर्म है तो a प्लस 60 आएगा, एंड 5th टर्म है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा a प्लस 4d. और क्वेश्चन क्या है कि 7th टर्म का 7 टाइम्स, so that means according to question we will have 7 times of 7th term, which is a plus 60. A plus 60 equals to 5 times the 5th term. 5th term आपका ये है, इसका 5 times a plus 4t. तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे. तो which will be 7a, 7 से आप a को मल्टीप्लाई करेंगे और 60 को, तो इट विल कम आउट टू बी 7a प्लस 42d इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 5 से 5a प्लस 4d, तो इट विल बी 5 मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 4d, इट विल बी 20d. तो आप लाइक टर्म्स को एक साथ ले आएंगे. 5a विल बी ट्रांसपोज टूवर्ड्स लेफ्ट, एंड देन वी हैव दिस 40d, देन 20d इसके साथ सॉल्व हो सकता है तो वी विल ट्रांसपोज दिस टू, इट विल कम आउट टू बी
equals to 0. So 7a minus 5a will be 2a plus 40d minus 20d is 22d equals to 0. Both of these two terms are divisible by 2. So what you can do, you can divide this both the terms by 2 and then you will have a plus 11d equals to 0. So what is a plus 11d? a 12th के लिए अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सो इट विल बी a plus 11d. तो a plus 11d क्या है? 0. सो दैट मीन्स a 12 is 0. This is your answer. Next, question number 2 is find the value of m so that the quadratic equation mx5x minus 6 equals to 0. तो ये आपका equation है and it has two equal roots. Okay, so let's solve this one. So your equation is question number 2 mx 5x minus 6. ओके, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट है, +9 भी है. सो कंप्लीट इक्वेशन इज दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड you have been given that it has two equal roots and you have to find the value of m. So we know that for two equal roots discriminant is equal to b square minus 4ac is equal to 0. That means for equal roots t is equal to 0. So we will put the values in this uh, b square minus 4ac. So first we need to solve this equation. तो आपके पास जो ये एम एक्स है this will be multiplied by 5x and multiplied with minus 6, so it will be 5mx square minus 6mx plus 9 equals to 0. So write down what is a, b and c. So a is 5m, b is minus 6m and c is 9. Put the values in this formula. So you will have minus 6m square minus 4 into a is 5m multiplied by c is 9 equals to 0. It will come out to be 36m square minus इन तीनों को मल्टीप्लाई करके what you will get 9 5 जा 45, 45 into 4 is 180 equals to 0. And now 36 is the common factor between the first term and this second term. So you can take 36 as the common and you have here m also because we have m. So it is 180m. So m भी common आ जाएगा. Then in the bracket you will have m minus 5 equals to 0. Now putting, you have two factors, this 36m and m minus 5. So 36m equals to 0. Put करोगे you will get m equals to 0 and second factor which is m minus 5 equals to 0 you will put, then m is equals to 5. But m equals to 0 we have to reject, because if we put m equals to 0 in this equation the entire equation will become 0. So we have to reject m equals to 0 and our final answer will be m equals to 5. Okay, so we have solved question number 2 also. Moving to the next question, question number 3. It is from a point P. ये point P, two tangents PA and PB are drawn. ये PA PB are drawn to a circle COR. ठीक है, ये circle है, center is O, R is radius. OP is equal to 2R. ये OP 2R. Find angle APB. That means you have to find this angle. And you have also to tell what type of triangle is APB. So let's solve this. Okay, so this is the figure for question number 3. और अगर हम फिगर को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो we can see that triangle APO, this triangle, okay, and triangle OPB, this one, these are congruent triangles. How we can prove this? Let's say AP
Okay, in triangle APO and triangle OPB. Okay, APO and OPB. AP is equal to PB because ये और ये these are tangents from same external point, so these are equal. Then OP is common in both the triangles, and then OA equals to OB. अगर आप ये OB ड्रॉ कर दें तो OA and OB रेडियस है, so this is also equal. Radii of circle are equal. Therefore, triangle APO is congruent to triangle OPB, and hence we can say that this angle and this angle are equal. Angle APO is equal to angle OP. So we have now angle APO equals to angle OPB. This means angle APB, जो ये पूरा एंगल है ये APB, this is twice of angle APO because these are equal. So angle APB is twice of angle APO. ये हमने इतना फाइंड कर लिया है. नाउ इन ट्रायंगल APO, बिकॉज हमारे पास OA गिवन है एंड OP गिवन है. OA इज व्हाट? परपेंडिकुलर, बिकॉज हमें पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, एंड परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस होता है. तो OA हाइपोटेनियस है एंड OP इज OA मीन्स परपेंडिकुलर है एंड OP इज हाइपोटेनियस. सो OA upon OP, P upon H हुआ ये. So this is equal to sin theta, and OA is R and OP is 2R. So R upon 2R equals to sin theta. R and R cancelled, so we have sin theta equals to 1 by 2. So sin theta 1 by 2 कितने डिग्री पे होता है? That is 30 degree. So theta is now 30 degree. That means that angle APO is 30 degree, and to angle APB जो ये वाला है, this is twice of angle APO, और हमें APB ही फाइंड करना है. तो angle APB is 2 into 30 degree, that is equal to 60 degree. So your answer is this, angle APB equals to 60 degree. All right. Next question is question number 4. So it says the curved surface area of right circular cone, that means CSA of cone, is 12,320 square centimeter and radius of its base is 56 centimeter. Find its height. H आपको find करना है, radius 56 and curved surface area. So let's solve this. So we have curved surface equals to 12,320. That means curved surface का formula क्या होता है? Pi RL. So pi RL is 12,320 and radius is 56 centimeter. Putting values in this formula, you will get into L equals to 12,320. So 7 8 56. Now L equals to 12,320, and transposing this 22 and 8 divide हो जाएगा. So now let's divide it. 4 2s are 8, 4 3s are 12. Now 3 will not be divided, so we'll put 0. Then dividing 32, 4 times 8 32, and then 0. Again divide
3080 by 2, so you will get 1540. Now 1540 and 22 can be divided by 11, so 11 2s are 22, 11 1s are 11, 11 4s are 44 and 0. Then again 2 and 140 can be divided, so you have L equals to 70 centimeter. Now you have to find h. So h is square root of l square minus r square. ये फॉर्मूला होता है, इसको ही ध्यान में रख के हमें ये सोचना है कि रेडियस तो हमारे पास है बट वी नीड टू फाइंड l, तो हमने ये फाइंड कर लिया है. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज. सो पुट द वैल्यूज हियर. l is 70 and r is 56. Square of 70 will be 4900. Square of 56 is 3136. So after subtraction you have 1764 and square root of 1764 is 42. So your height is 42 centimeter. So with this we will complete this question number 4 also. Moving to the next question, that is question number 5. So we have Mrs. Kirk recorded the marks obtained by her students in the following table. This is table marks obtained and you have number of students. She calculated the modal marks of the students of the class as 42. Modal marks is 45. That means your mode is given, that is 45. While printing the data, a blank was left. ये वाला blank. Find the missing frequency. You have to find this frequency. Alright. सो पहले यहाँ समझते हैं कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें कौन सी वैल्यूज़ आपको यूज़ करनी है. फॉर्मूला ऑफ मोड इज़, बिकॉज वी हैव बीन गिवन मोड 45, तो मोड आपके पास गिवन है तो आपको मोड का ही फॉर्मूला यूज़ करना है. सो फॉर्मूला इज़ L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय h. ये फॉर्मूला है. तो अब आपको पता होना चाहिए L क्या है, F1 F0 एंड F2 h, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं. तो L आपका होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. ओके, दिस इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कौन सी वैल्यू का मतलब क्या होता है. देन F1 होता है जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा मॉडल क्लास कौन सी है, बिकॉज आपके पास मोड 45 है, मार्क्स का है ना, मॉडल मार्क्स. तो आप ये सोचिए कि 45 कौन सी क्लास इंटरवल में आएगा, यहाँ पे आएगा 40 to 60 में. तो ये है आपका मॉडल क्लास, इसकी लोअर लिमिट है 40, सो L विल बी 40. और F1 इसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है विच इज़ दिस ब्लैंक. तो F1 इज़ मिसिंग, ये है आपको फाइंड करना है. F0 होता है इसके प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो विच इज़ दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी. तो इसके प्रीवियस क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10. सो F0 इज़ 10 एंड F2 होती है मॉडल क्लास की नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स दिस 6. एंड H क्या होता है, H होती है हाइट, जो आपके बीच ये मार्क्स हैं 0 to 20, 20 to 40, तो 20 का जो गैप है दैट इज़ H. सो H इज़ 20. तो थोड़ा सा इसको एकदम क्लियर में लिख लेते हैं हम लोग. तो ये हैं सारी वैल्यूज़ जो मैंने यहाँ पे नोट कर ली हैं. नाउ वी विल सॉल्व फॉर दिस मिसिंग फ्रीक्वेंसी. सो put the values in this formula. Mode is 45. L is what? L is this 40. So put 40 here plus F1. F1 we have to find. F0 is 10. 2F1, 2 multiplied by
f1 minus f0 which is 10 and then f2 which is 6 and h is h is not 10, it is 20. So it is 20. So let's solve this now. पहले आप 40 को ट्रांसपोज कर दीजिए. 45 minus 40 you will have 5. So let's take 5 and now ये जो 20 ब्रैकेट के बाहर है दैट मीन्स आपको इसको f1 और 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो इट विल बी 20 f1 माइनस 200 एंड आपका डिनोमिनेटर में 2f1 माइनस 10 माइनस 6 इज माइनस 16. सो अब क्या करना होगा, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. सो विल हैव 20 f1 माइनस 200 इक्वल्स टू 10 f1 माइनस 80. 5 से ये 2 f1 एंड माइनस 16 को मल्टीप्लाई करके. नाउ ट्रांसपोज द लाइक टर्म्स टुगेदर. सो 10 f1 को ट्रांसपोज कर दिया आपने तो इट विल बी 20 f1 माइनस 10 f1 इक्वल्स टू माइनस 80 एंड माइनस 200 इधर राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया प्लस 200. सो नाउ यू विल हैव 20 minus 10 you will get 10 f1 and minus 80 plus 200 it will be 120. So f1 is equal to 120 divided by 10. f1 is 12. So this is your answer. Next question is question number 6. If Ritu were younger by 5 years then what she really is. इसका मतलब कि अभी जो उसकी प्रेजेंट एज है अगर वो उससे 5 years छोटी होती तो आप इसमें पहले उसकी प्रेजेंट एज से कंपेयर कर रहे हैं कि उसके 5 years यंगर. तो लेट हर प्रेजेंट एज बी x years. 5 years यंगर तो 5 years पहले उसकी एज क्या होगी x माइनस 5. आगे क्या लिखा, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, यानी कि जो 5 years यंगर वाली एज है उसका आप स्क्वायर कर दें तो वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज. 5 तो वुड बी मतलब इक्वल टू उसके प्रेजेंट एज का 5 times मतलब 5x उससे प्लस 11 मोर होता. So this will be equation. Now you can easily solve this equation. यहाँ पर आप a minus b whole square की आइडेंटिटी यूज़ करके you will get x square minus 10x plus 25 and this side right you have 5x plus 11 and again bringing the all like terms together. So you will be getting x square minus 10x minus 5x और ये plus 25 and then this 11 ये minus 11 हो जाएगा equals to 0. So it comes out to be x square minus 15x and 25 minus 11 is 14 plus 14 equals to 0. अब आपको इसका मिडल टर्म स्प्लिट करके then you will have to solve this. तो 15 का क्या स्प्लिट करेंगे, 14 प्रोडक्ट चाहिए तो दैट मीन्स आपको 14x माइनस x लेना होगा प्लस 14 इक्वल्स टू 0. नाउ इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से. सो आपके फर्स्ट वाले में x कॉमन है फर्स्ट ग्रुप में. सो इट इज़ x माइनस 14 और इन दोनों में नथिंग इज कॉमन सो यू कैन कीप -1 देन इट विल बी x माइनस 14. आपको याद रखना यहाँ माइनस साइन था -1 ले लिया है तो ये आप जब ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं ये प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा तभी तो ये -1 इंटू -14 प्लस 14 होगा जो कि ऊपर प्लस 14 है और आपके इस ब्रैकेट में भी सेम आना चाहिए आपको पता ही है. सो यू विल गेट 2 फैक्टर्स x माइनस 14 एंड दिस x माइनस 1 ये वाला. तो क्या वैल्यूज़ आएंगी आपकी दोनों फैक्टर से x की. 1 विल बी x इज इक्वल टू 1, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आएगा एंड अनदर विल बी यहाँ से x इक्वल्स टू 14. तो अब आप देखिए कि क्वेश्चन में 5 years पहले की बात है. अगर हम 1 ले लेंगे प्रेजेंट एज x हमने प्रेजेंट एज लिया था तो प्रेजेंट एज 1 लिया तो 5 years पहले तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी.
वो तो पॉसिबल है नहीं. सो वी हैव टू कीप दिस वैल्यू x इक्वल्स टू 14. दैट इज़ हर प्रेजेंट एज. यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट इज़ हर प्रेजेंट एज. सो हर प्रेजेंट एज इज 14 years. Next question is or part of question number 6, that is this. आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, एंड आपको क्या करना है, सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं फॉर एक्स. ये आपकी इक्वेशन है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर यूज़ करेंगे हम लोग तो ए की वैल्यू है आपके पास 9, b is -6p and c is this p square minus q square. अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमें डिस्क्रिमिनेंट की ज़रूरत होती है, तो d हम पहले भी फाइंड कर सकते हैं. d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. पुट द वैल्यूज़. So you will get 36p square and this is what. अब p square minus q square, इसमें दो टर्म्स हैं. You have to put inside the bracket. 9 multiplied by 4 will be minus 4 minus 36, and then you have p square minus q square. So 36p square minus, अब minus 36 से p square मल्टीप्लाई हो जाएगा. यू विल गेट माइनस 36p स्क्वायर, और फिर माइनस 36 से माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी प्लस. साइन का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्लस 36q स्क्वायर. दिस टर्म इज कैंसल्ड. यू हैव 36q स्क्वायर विच इज़ द डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट हमने सॉल्व कर लिया है, दैट इज 36q स्क्वायर. तो x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं. सो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस इनसाइड द रूट d एंड देन डिवाइडेड बाई 2a. सो b इज़ 6p माइनस 6p. तो यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस 6p ये हो जाएगा प्लस 6p. So we will write 6p plus minus and d की वैल्यू रूट पे पुट कर दी 36q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a. So now it will be 6p plus minus 36 का 6 रूट आ जाएगा एंड q स्क्वायर से q, तो रूट सॉल्व कर दिया है हमने. देन 2a. ऑलराइट, a की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, दैट वाज 9. सो यहाँ पे पुट कर दिया आपने 2 मल्टीप्लाइड बाई 9. सो इट बिकम 6p प्लस माइनस 6q अपॉन 18. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 कॉमन है तो 6 को कॉमन ले लीजिए. p प्लस माइनस q अपॉन 18. तो 6 से डिवाइड हो गया ये. सो यू हैव p प्लस माइनस q divided by 3. So now x is equal to either p plus q upon 3 or p minus q upon 3. So these are the two values of x, because यहाँ पर प्लस माइनस था तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ. So this is your final answer. So we have solved all the questions of section A, and now we have to solve section B. Alright, so section B, first question, that is question number 7, is following is the distribution of the long jump competition in which 250 students participated. Find the median distance jumped by the students and interpret the median. ठीक है, तो 250 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपके पास, एंड आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन डिस्टेंस. ओके, अब डिस्टेंस आपका यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, एंड उनके कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. तो पहले हम समझेंगे कि मीडियन के लिए हमें कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए. तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF डिवाइडेड बाय F एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ओके,
अब n तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो 250/2 आप यहाँ पर ले सकते हैं, तो n/2 इज़ 250 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 125। l क्या है? l इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्या होती है? सेंट्रल वैल्यू। तो ये है आपकी मीडियन क्लास, इसकी लोअर लिमिट, तो l आप क्या लेंगे? 2। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आप ये फॉर्मूले में देखिए, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रहा है, तो आपको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक और आपको कॉलम ऐसे बनाना पड़ेगा, एक और रो इसमें। सो आप कैसे करते हैं? आप फ्रीक्वेंसी को हर स्टेप पे ऐड करते हैं। फर्स्ट इज़ 40, अब सेकंड में 80 और ये वाला 40 आप ऐड कर देंगे, दैट इज़ 120। अब 120 और ये ऐड करके नेक्स्ट वैल्यू 62, इट इज़ 182। then next 182 plus 38, it will be 220 and 220 plus 30 is 250। तो ये हमें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि फॉर्मूले में सी एफ कौन सा वाला लेना है? ये आपको लेना है जो मीडियन क्लास से प्रीवियस, पहले वाला, दैट इज़ 120। तो सी एफ आपको लेना है 120, और जो फ्रीक्वेंसी है एफ वो आपको मीडियन क्लास की लेनी है, विच इज़ 62। ओके, एफ इज़ 62। ये मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया बिकॉज फिर टेबल यहाँ से समझाना इजी था। नाउ अब हम सारी वैल्यू क्लियरली नोट करके देन वी विल सॉल्व दिस। एंड एच, व्हाट इज़ एच? एच इज़ ये जो हाइट है आपकी हर क्लास इंटरवल में 1 का गैप है, तो एच इज़ 1। ऑलराइट, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने नोट कर ली है। नाउ वी विल पुट द values in the formula. So L is 2 plus n/2 is 125, CF is this 120, जो मीडियन क्लास है उसकी प्रीवियस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी आपकी मीडियन क्लास की है, दैट इज 62 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो इट कम्स आउट टू बी 2 + 5/62। 1 से मल्टीप्लाई करके ये आपका 5/62 ही रहने वाला है। सो 2 + 5/62, सॉल्व दिस। 62 multiplied by 2 will be 124 plus 5/62, so it comes out to be 129 divided by 62, and when you divide 129 by 62 you get 2.08 meter, 2.08 meter। अब क्वेश्चन में ये था कि व्हाट डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम द मीडियन। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो median we have calculated 2.08 meter for this question number 7, and interpret the median, आपको बताना है कि इससे आपको क्या समझ में आता है। तो मीडियन क्या होती है? सेंट्रल वैल्यू, मतलब 2 to 3 के बीच में जो है वो मीडियन है हमारा, और वो एग्जैक्ट वैल्यू है 2.08 मीटर। तो मीडियन का मतलब कि 50%, बीच की वैल्यू होती है ना, तो 50% ऑफ द डिस्टेंस जम्प्ड बाय द स्टूडेंट्स आर अबव दिस 2.02 मीटर एंड 50% आर below this distance, that is 2.08 meter, median distance. This is what you can interpret from the median. Next, question number 8 is construct a pair of tangents to a circle of radius 4 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree। तो टेंजेंट्स जो आप कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, एंड सर्कल का रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। सो रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है ये समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि जैसे हमने एक सर्कल तो 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया, ऑलराइट, 4 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ कर लिया है। आप इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल वाला रेडियस ले लेंगे, सपोज ओ सेंटर है, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस है। अब आप पहले ये समझिए कि जैसे टेंजेंट्स हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है,
तो कौन सा एंगल 60 डिग्री है? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स. सपोज दिस इज P पॉइंट, दिस इज B पॉइंट. तो AP और BP के बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए. अब आपको ये पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, और ये वाला भी 90 डिग्री होगा. तो हम जब यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट, देन ये एंगल कितना होगा? तो आपको ये तो पता है कि ये दो एंगल तो 90 और 90 है, तो 180 ये हो गया. ये वाला 60 है, तो ये फोर्थ एंगल 180 माइनस 60 होगा. तो अब आप कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? तो ये वाला एंगल दैट इज़ एंगल AOB. आप पहले क्या कैसे करते हो? अगर 60 डिग्री टेंजेंट के बीच में, तो 180 माइनस 60 डिग्री विल बी 120 डिग्री. तो अब फर्स्ट आप इस फिगर से आपने समझ लिया कौन सा एंगल कितना होना चाहिए. अब आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रेडियस ड्रॉ कर दीजिए 4 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर पॉइंट O पर 120 डिग्री का एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है. तो 120 डिग्री का एंगल आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर देना यूजिंग कंपास. यू हैव टू ड्रॉ दिस बिकॉज दिस इज़ कंस्ट्रक्शन. एंड देन अगर ये पॉइंट B है, तो B पॉइंट पे यहाँ पे हम देख सकते हैं 90 डिग्री. तो यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. A पॉइंट पर भी 90 डिग्री. तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ही 60 डिग्री टेंजेंट्स के बीच में एंगल बन जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू ड्रॉ. ठीक है. Next question is question number 9. So the question reads, the distribution given below shows the runs scored by batsmen in one day cricket matches. Find the mean. तो ये टेबल है आपके पास. रन स्कोर्ड क्लास इंटरवल में है 0 to 40, 40 to 80 एंड सो ऑन. और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बैट्समैन गिवन है. यू हैव टू फाइंड मीन. सो ये टेबल है आपके पास जिसमें रन स्कोर्ड और नंबर ऑफ़ बैट्समैन गिवन है. अब आप जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला होता है समेशन FI/XI डिवाइडेड बाय समेशन FI. समेशन FI मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर है, उसका टोटल. तो ये टोटल तो आपके पास गिवन है, दैट इज़ 120. आपको FI/XI की कॉलम चाहिए, उसका समेशन मतलब उसका टोटल. तो आपको एक XI की कॉलम बनानी होगी, और फिर ये वाला जो है नंबर वाला, ये है आपका FI. फिर आप FI और XI के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आप FI/XI के अंडर नोट करेंगे. ऑलराइट. सो XI कैसे फाइंड करते? XI आप करते हैं जो क्लास इंटरवल है, जो 0 to 40, 40 to 80 वाला, इसका एवरेज. लाइक फर्स्ट जो वैल्यू होगी XI की, वो 0 + 40 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी 20. नेक्स्ट ऐसे ही 40, ये वाला 40 + 80 डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बी 60. आप देख रहे हैं 40 का गैप है, तो इसमें XI में भी हर वैल्यू में 40 40 ऐड होते जाएगा. तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट 40 ऐड करके लिख सकते हैं, ये सेम ही आएगा. एंड दिस इज 200, 20, 60, 100, then 140, and then we'll have 180. all right. and then ये तो टोटल वाला है, तो ये वाला कंप्लीट हो गया. देन FI/XI. तो आप FI और XI के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक ये वाला 12 इन मल्टीप्लाइड बाई 20, इट विल बी 240. सो इस तरह से आपने सारी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके टेबल कंप्लीट कर लेना है. नेक्स्ट इज 14 मल्टीप्लाइड बाई 342 एंड देन 0 0, so 4200. 23 मल्टीप्लाइड बाई 18 is 414 and then 104,140.
और इन सब का सम जब आप करते हैं यू गेट 13,280. Alright, so now अब summation fi is 13,280 and summation fi is 120. आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड किया, आई एम गेटिंग 332. now you have to divide 332 by 3, which comes out to be 110.67. so mean runs is 110.67. all right, next question is two vertical poles. This one, number 10. Two vertical poles of different heights are standing 20 meter away. तो टू पोल्स हैं एंड उनके बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस है एंड उनकी हाइट डिफरेंट है, एक छोटी एक बड़ी है. From each other on the level ground, the angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree. तो फिगर हम यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं. इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड हियर. टू वर्टिकल पोल्स, तो दोनों की डिफरेंट हाइट दी है हमें. तो आपने सपोज एक ले लिया ये ए बी एंड ए वन इज पी क्यू. डिफरेंट हाइट्स है, दे आर 20 मीटर अवे. तो ये डिस्टेंस मीन्स 20 मीटर है. देन the angle of elevation of top of the first pole from the foot of the second pole, ये second pole का foot और first pole के top के बीच में angle of elevation is 60 degree and angle of elevation of top of the second pole from the foot of the first pole, this angle is 30 degree. Find the difference between the heights of two poles. तो आपको ए बी की हाइट और पी क्यू की हाइट दोनों फाइंड करके उनका डिफरेंस निकालना है. एंड दे हैव आल्सो गिवन √3. यू हैव टू पुट 1.73. सो ये फिगर हमने ड्रॉ की थी और ए बी माइनस पी क्यू के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है. तो फर्स्ट अगर हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले लें ए बी क्यू, इसमें 60 डिग्री एंगल है और आपको क्या ए बी फाइंड करना है. बी क्यू, इनके बीच के डिस्टेंस तो हमें गिवन हुआ है, दिस इज 20 मीटर. तो ए बी फाइंड करनी है, इसलिए ए बी तो हम लेंगे ही, ए बी अपॉन बी क्यू इन ट्राइंगल ए बी क्यू. अब पोल्स हैं, वर्टिकल हैं, आप जानते हैं दिस इज 90 degree angles, that's why we are using trigonometric ratios. AB upon BQ is, ये P upon B है तो tan 60 degree, AB upon BQ 20, tan 60 is √3. so we have by cross multiplying AB equals to 20 √3 meter. distance है, don't forget to put the units. all right, then in triangle PQB, जो सेकेंड ट्राइंगल है हमारी PQB ये वाले, इसमें और एंगल इज 30 डिग्री. फाइंड करना है PQ. तो PQ इज परपेंडिकुलर, BQ इज बेस, अगेन tan 30. सो PQ अपॉन BQ इक्वल्स टू tan 30 degree. and put the values. so PQ upon 20 equals to 1 by √3. by cross multiplying you will get PQ equals to 20 upon √3. 20 upon √3. तो हमें डिफरेंस फाइंड करना था. तो ए बी माइनस पी क्यू, ए बी की वैल्यू आई थी हमारी 20 √3 एंड पी क्यू की वैल्यू 20 अपॉन √3. तो पहले आप √3 की वैल्यू पुट ना करें, तो उससे आपकी कॉम्प्लिकेशंस कैलकुलेशन में बढ़ जाएंगी. लास्ट में जो फाइनल डिफरेंस फाइंड करना था, जो डिफरेंस आ जाएगा उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. √3 एलसीएम आएगा
और 20√3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, तो इट विल बी 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ 60 एंड दिस 20 विल रिमेन सेम. So 60 minus 20 is equals to 40 by √3. अब आप फाइनली वैल्यूज़ पुट कर दीजिए 1.73 एंड देन when you like if you remove the decimal then you get here 100. 4000 divided by 173 and then you can solve this. Your after division you will get 23.06 meter. 23.06 meter is your final answer. Moving to the next question, that is second option of question number 10. A boy 1.7 meter tall is standing on a horizontal ground. आप फिगर ड्रॉ करते जाएं. लेट्स से ये ए बी एक बॉय है. ही इज़ 1.7 मीटर टॉल, तो ये 1.7 मीटर. देन ही इज़ स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग. तो एक बिल्डिंग है और 50 मीटर अवे, दैट मीन्स ये डिस्टेंस 50 मीटर है. लेट्स से ये बिल्डिंग पी क्यू है. देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई. तो यहाँ पर आई मतलब यहाँ टॉप से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये एंगल. अब यहाँ एंगल बनाने के लिए आपके यहाँ पर बेस होना चाहिए, तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे. ये एंगल इज 60 डिग्री. कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. अब आप देखिए कि ये पी क्यू पूरी हाइट है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग. और आपकी जो राइट ट्रायंगल बन रही है वो बन रही है, सपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं आर. तो पी ए आर एक ट्रायंगल बन रही है. यहाँ से आप क्या करेंगे, अब ये ए बी एंड आर क्यू तो इक्वल होगा, तो दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू 1.7 मीटर. तो आप पी ए आर ट्रायंगल लेके यहाँ पर ए आर भी 50 मीटर होगा, जो नीचे बेस है बी क्यू 50 मीटर. पी आर सॉल्व कर लेंगे एंड देन उसमें 1.7 मीटर प्लस कर देंगे. ये वी शुड नॉट फॉरगेट. ओके, पी आर प्लस आर क्यू विल बी दी हाइट ऑफ बिल्डिंग. पी आर फाइंड करेंगे एंड देन उसमें आर क्यू प्लस कर देंगे. सो लेट्स से पी क्यू बी द बिल्डिंग and AB be the boy. ये आपका आर क्यू भी 1.7 मीटर है. ऑल राइट. सो हाइट ऑफ बिल्डिंग पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू. ये है आपके पास आर क्यू, यू ऑलरेडी नो 1.7. पी आर वी विल फाइंड. So in triangle PAR, PR because PR हमें find करना है and AR we know. So हम लेंगे PR upon AR, P upon B and P upon B is tan and this angle was 60 degree. So it is tan 60 degree. PR AR is 50, tan 60 is √3. So PR comes out to be 50√3 meter. And now height of the building is this PR plus RQ. तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट कर देते हैं इट कम्स आउट टू बी 50√3 प्लस 1.7. ऑलराइट. एंड इस क्वेश्चन में भी आपको गिवन है √3 1.73 लेना है आपको. तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 1.73 प्लस 1.7. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन you get 86.5 plus 1.7, so it comes out to be 88.2 meter. This is the height of the building. All right, so with this we have completed section B also. Now moving to section C. So next question is question number 11
from section C. The internal and external radii of spherical shell are 3 centimeter and 5 centimeter respectively. जैसे शेल है, स्फेरिकल है, वैसे यहाँ पर तो हम सर्कुलर ही शो कर पाएंगे. तो इंटरनल रेडिया इज 3 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल इज 5 सेंटीमीटर. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 centimeter. Find the height of the cylinder and also find the total surface area of the cylinder. तो आपके पास सिलेंडर का डायमीटर है विच इज़ 14 और स्फेरिकल शेल की इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस है 3 एंड 5. इंटरनल एक्सटर्नल रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो आपको यहाँ पर ये समझना है, जब आपके पास एक शेल होता है जिसमें आपके पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस है, दैट मीन्स वॉल्यूम इस पार्ट का निकलेगा, इस पार्ट का. और इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करना होता है, क्योंकि इसको मेल्ट किया है. इसका मतलब ये कन्वर्जन ऑफ सॉलिड वाला क्वेश्चन है कि शेल से हमने सिलेंडर बनाया है, तो वॉल्यूम ऑफ शेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो जो शेल का वॉल्यूम निकलेगा वो आउटर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. इसको मैं यहाँ पर आपको समझा दी हूँ, आपको शॉर्ट में थोड़ा करना है. लाइक अब जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम होगा 4/3. रेडियस एक्सटर्नल इंटरनल आप उसके लिए डिफरेंट ये मतलब जो डिनोट करते हैं आप, एक कैपिटल आर ले लीजिए रेडियस एक्सटर्नल के लिए और इंटरनल के लिए स्मॉल आर. तो आप देखेंगे इसमें 4/3 पाई कॉमन है, देन इट इज़ आर क्यूब माइनस आर क्यूब ऐसे करके. तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया है तो डायरेक्ट ये यूज़ कीजिए आप, इससे आपके कैलकुलेशन में कम टाइम लगता है. ऑलराइट, सो आप डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ शेल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब. तो हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं, इनर रेडियस ऑफ शेल उसको हमने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया 3 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस कैपिटल आर 5 सेंटीमीटर and diameter of cylinder 14 centimeter. And we have understood this, that this question can be solved by putting volume of shell equal to volume of cylinder. Now volume of shell can be written as 4/3 pi r cube minus r cube, and volume of cylinder is pi r square h. अब आप सिलेंडर के लिए भी डिफरेंटली आप डिनोट कर सकते हैं रेडियस को. सो रेडियस ऑफ सिलेंडर R1 इज, बिकॉज यहाँ पर डायमीटर था तो 14/2 इज 7 सेंटीमीटर. नाउ पुट द वैल्यूज़. अभी पाई को मत पुट कीजिए क्योंकि पाई जो है ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, इस कन्वर्जन वाले में आपको इक्वल टू करके पुट करते हैं तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करना है, इससे आपका टाइम बचेगा. तो 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब इक्वल्स टू पाई एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 स्क्वायर एच. एच तो हमें फाइंड ही करना है. नाउ दिस पाई एंड पाई कैंसिल. 4/3 cube of 5 is 125 minus cube of 3 is 27 equals to 49 multiplied by h. So it is 4/3 multiplied by 125 minus 27 will come out to be 98 equals to 49 multiplied by h. अब ये 3 and 98 are not divisible, so h equals to 49 को आप ट्रांसपोज करेंगे, it will be as a denominator, so 49 and now 49 2s are 98. So h is what? H is
4, this 4 multiplied by 2, 8 by 3. So h is 8 by 3 centimeter. Now we have to also find TSA of cylinder. So TSA of cylinder is 2 pi r plus h. So 2, now I will put value of pi, radius is 7, radius 7 plus h is 8 by 3. 7 and 7 cancel, we have 44. Now to solve this bracket we have to take LCM. So it will be 21 plus 8. Now 44 multiplied by 29 upon 3. 44 multiplied by 29 is 1276 divided by 3. This is square centimeter. Now if you convert it to decimal form, you will get 425.33 square centimeter. Alright. Next question, question number 12 is prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center. Angle between the two tangents, like this angle, and this angle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसको सेंटर से ज्वाइन किया और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसको, तो ये एंगल जो फॉर्म हुआ, दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सप्लीमेंट्री, दैट यू हैव टू प्रूव. ओके, सो लेट्स डू दिस सम. सो AOPB इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है एंगल sum of the four angle is 360 degree. So angle PAB plus angle APO plus angle POB, I'm writing the four angles plus angle APO, sum of all these is 360 degree. Now we also know that tangents are perpendicular to the center. So here angle APO is 90 degree. This one and this one tangents are perpendicular to the center. So angle ABO is also 90 degree. You can write, mention the reason, because tangents are perpendicular to the center. Okay, so now put the values. Angle PAB plus APO is 90 degree. POB we don't know. Angle ABO is 90 degree equals to 360 degree. So 90 plus 90 180 and आप इसे ट्रांसपोज कर देंगे. So it will be 360 degree minus 180 degree. So you have got your answer. PAB plus angle POB equals to 180 degree, hence proved. Alright, moving to the next question, which is the second option of question number 12. It is proof that the angle, no sorry, the second option, this one, two tangents TP and TQ, ये फिगर है आपकी, TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is twice of angle OPQ, this one. Alright, so let's draw this figure and prove this. Alright, so we have to prove this. Angle PTQ is equal to 2 twice of angle OPQ. तो हमें कैसे सोचना चाहिए, ये इक्वेशन चाहिए तो PTQ
वी हैव टू थिंक कि इसकी वैल्यू क्या होगी एंड ओ पी क्यू की वैल्यू क्या होगी. तो लेट्स टेक पी टी क्यू फर्स्ट. पी टी क्यू is in triangle PTQ, PT and TQ, these are tangents, so these are equal. And you also know that angle opposite to equal sides are equal. So in triangle TPQ, in triangle TPQ, angle TPQ is equal to angle TQP. This one and this one. Why? So first you should write TP is equal to TQ, because tangents from same external point are equal. Okay, then you should write this key angle opposite to equal sides are equal, so that's why angle TPQ is equal to angle TQP, because angles opposite to equal sides are equal. So now in this triangle, sum of the three angles will be equal to 180 degree, and we are trying to find out PTQ, this one, and these two are equal, so we can write at 2 angle TPQ equals to 180 degree minus, transposing this you get angle 180 degree minus angle PTQ. So 2 angle TPQ is this, but हमें चाहिए क्या, angle T, this one. So angle TPQ is equal to 90 minus angle PTQ upon 2.
ये कैसे आया है, देखिए 180 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 90 एंड देन PTQ डिवाइडेड बाय 2. नाउ कमिंग टू एंगल OPQ. अब आप इस फिगर में देखेंगे यहाँ पर, तो OPQ कैसे आपके पास OPQ आएगा, TPO minus this TPQ is OPQ. So angle OPQ is equal to angle TPO minus angle TPQ. Put the values here. TPO is 90 degree because tangents are perpendicular to the radius और vice versa. तो ये एंगल आपका है 90 डिग्री एंड TPQ की ये वाली वैल्यू आप पुट कर दीजिए. सो ना माइनस, अब ये TPQ की वैल्यू में देयर आर 2 टर्म्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यूज़ लिखें, बिकॉज व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट द साइंस आर चेंज्ड. अगर आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो योर question, your answer will be wrong. Now 90 and 90 cancel and you have this angle OPQ equals to PTQ upon 2. When you cross multiply you will get angle PTQ equals to twice of angle OPQ, hence proved. Alright. Next question is question number 13, which is a question based on case study. And so we read the question. Trigonometry in the form of triangulation forms the basis of navigation, whether it is by land, sea or air. GPS, a radio navigation system, helps to locate our position on the earth with the help of satellites. तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है आपको. Question starts from here. A guard stationed at the top of a 240-meter tower, यानी कि ये टावर है आपका और ये 240 मीटर की हाइट पर गार्ड है यहाँ पर. So guard observed an unidentified boat coming towards it. अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करूँ तो you can see the image is given. ये बोट है. So a clinometer or inclinometer is an instrument used for measuring angles or slopes. The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse. मतलब कि गार्ड यहाँ पे बैठा है, उसने ये बोट देखी ऊपर से, यहाँ पर देखी, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ये बेस ऐसे फॉर्म करके ये एंगल उसे 30 डिग्री मेजर किया क्लिनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट से एंड फाउंड इट टू बी 30 डिग्री. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर. ये टावर है और ये बोट है, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है. पहले इसकी फिगर बनानी है, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं पहले. सो क्वेश्चन में क्या था आपके पास, फिगर जो बनेगी कि टावर है 240 मीटर इसकी हाइट है, इसके टॉप पे गार्ड बैठा है और उसको एक बोट दिखाई देती है, वो ऊपर से देखता है यहाँ पर. तो और जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये एंगल मेजर करता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ठीक है. और आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि फुट ऑफ द टावर से यहाँ पर बोट है, इसकी डिस्टेंस कितनी है. तो ये फिगर ऐसे बनेगी, आप इसकी लेबलिंग कर सकते ABC. BC you have to find. This angle will be 30 degree. In triangle ABC, now the question is very easy once you have drawn the figure.
ए बी अपॉन बी सी, बिकॉज ए बी आपके पास गिवन है एंड बी सी यू हैव टू फाइंड. तो दिस इज पी अपॉन बी विच इज equal to tan tangent of theta and which is 30 degree. So AB is 240 and BC tan 30 is 1 upon root 3. When you cross multiply you get BC is equal to 240 upon root 3. So distance of the boat from the foot of the tower is 240 root 3 meter. Now let's read the second part of the question, which is after 10 minutes. The guard observed that the boat was approaching the tower and its distance from tower is reduced by 240 root 3 minus 1 meter. उसने देखा कि ये बोट टावर की तरफ आ रहा है, ठीक है, एंड आफ्टर 10 मिनट्स जो भी डिस्टेंस पहले था, ये समझना है आपको कि डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय 240 रूट 3 माइनस 1, यानी जो आपने अभी डिस्टेंस कैलकुलेट करी है उससे इतना कम हो गया है. He immediately raised the alarm. What was the new angle of depression of the boat from the top of the observation tower? Now, अब आपके पास डिस्टेंस गिवन है बिटवीन द टावर एंड द बोट और आपको एंगल फाइंड करना है. सो लेट्स सॉल्व दिस. तो ये हमारी फिगर पहले थी और हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया 240 रूट 3 मीटर. अब बोट टावर की तरफ आ रही है इस तरफ, सपोज यहाँ पहुँच गई है, तो यहाँ पहुँचकर अब उसकी डिस्टेंस जो है पहले से कितनी लेस हो गई है. सो नाउ डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर and boat is what? It is said that it is reduced by 240 रूट 3 माइनस 1, ऐसे. like this. all right, so ये है reduced distance. आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 240, ये 240 रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 1 से, सो यू विल गेट 240 रूट 3 या प्लस 240 plus 240, it was root 3 minus 1. Yes, so our distance was, this was 240 root 3, ठीक है, और उससे कितनी कम हो गई है 240 रूट 3 माइनस 1. यहाँ पर हमारे पास है 240 रूट 3 एंड दिस इज 240. ऑलराइट, सो कंफ्यूज नहीं होना. एक्चुअली ये डिस्टेंस हमारा पहले इतना आया था फर्स्ट पार्ट में और हमें गिवन है कि इतना 240 रूट 3 माइनस 1 कम हो गया, तो हमने माइनस कर देना है. दिस इज़ 240 रूट 3 और आप माइनस 240 रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट माइनस 240 रूट 3 एंड देन माइनस 240 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 इज प्लस 240. सो these two terms are cancelled and now the distance is 240 meters. So now to calculate the angle, मतलब कि अब जो है बोट की पोजीशन यहाँ है, सपोज टी पॉइंट ले लिया हमने, तो ये एंगल कैलकुलेट करना है. ऑलराइट, सो आप ले लीजिए इन ट्रायंगल ए डी बी, ए बी अपॉन बी डी, ये जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है दिस इज बी डी. सो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan थीटा, हमें थीटा कैलकुलेट करना है. तो ए बी इज 240, बी डी इज ऑल्सो 240, tan थीटा, सो इट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 1 एंड थीटा 1, टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है 45 डिग्री पे, सो एंगल इज 45 डिग्री.
So we have completed this question too. Now moving to the last question of this sample paper, which is question number 14 based on case study. So it says push-ups are a fast and effective exercise for building strength. These are helpful in almost all sports including athletics. While the push-up primarily targets the muscles of the chest, arms and shoulders, support required support required from other muscles helps in toning up the whole body. तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है. क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. Nitesh wants to participate in the push-up challenge. He can currently make 3000 push-ups in 1 hour. But he wants to achieve a target of 3900 push-ups in 1 hour, for which he practices regularly. With each day of practice, he is able to make 5 more push-ups in 1 hour as compared to the previous day. If on first day of practice he makes 3000 push-ups and continues to practice regularly till his target is achieved, keeping the above situation in mind, answer the following question. तो क्वेश्चन क्या है कि नितेश एक पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है. अभी वो 3000 पुशअप्स कर पाता है 1 आवर में. 3000. लेकिन वो चाहता है कि 3900 पुशअप्स कर पाए 1 आवर में. इसके लिए वो हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहा है और हर रोज़ प्रैक्टिस करके वो 1 आवर में 5 मोर पुशअप्स कर पाता है, यानी प्रीवियस डे के मुकाबले 5 एक्स्ट्रा कर पाता है. तो अगर उसने फर्स्ट डे पे 3000 पुशअप्स किए हैं और इसी तरह से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है जिसमें 5 हर रोज़ उसके इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो क्या करना है, आपको एक एपी फॉर्म करना है. यानी कि 3000 से स्टार्ट होगा, ऐसे कंटिन्यू होगा. करना क्या है, व्हाट इज हियर टू फाइंड, एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज. एन फाइंड करना है. ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड. तो गोल क्या है उसका, 3900. तो 3900 तक पहुंचने में उसे कितने दिन लगेंगे, वो है नंबर ऑफ डेज, मतलब एन फाइंड करना है. लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड. मतलब आप जो एन फाइंड करेंगे वो तो यहाँ तक आएगा 3900 पुशअप्स तक. उसको एक दिन पहले का करना है, तो वॉट एवर इज़ योर एन उसमें से आप 1 माइनस कर देंगे. ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात. सो लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो द एपी इज 3000, 3005, 3010 and so on, and last one is 3900. all right, we have to find n. हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास लास्ट टर्म है, हमारे पास डिफरेंस भी है, डी भी है. डी इज़ व्हाट, 3005 माइनस 3000 इक्वल्स टू 5. तो हमें एन फाइंड करने के लिए ए एन का फॉर्मूला वी कैन यूज़. पुट द वैल्यूज़. ए एन इज़ द लास्ट टर्म जो 3900 तक पहुंचना है उसे. सो ए एन इज़ 3900. ए इज़ योर फर्स्ट टर्म विच इज़ 3000. एन यू हैव टू फाइंड -1. डी इज़ 5. सो ये 3000 आप इधर ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस हो जाएगा. यू विल गेट 900 इक्वल्स टू n -1 मल्टीप्लाइड बाई 5. सो आप राइट साइड सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 5n - 5 एंड देन 5 ट्रांसपोज करेंगे, प्लस हो जाएगा. सो यू विल गेट 905 इक्वल्स टू 5n एंड n इक्वल्स टू 905 डिवाइडेड बाई 5. So after dividing, what you get, 181. But remember, this is total number of days taken to achieve target of 3900 push-ups. But हमें उससे 1 day before तक का number of days पता करना है. So required minimum number of days जो क्वेश्चन में पूछा गया है, with it will be n - 1. that is 181 - 1 equals to 180.
Alright, so we have completed this two. Now moving to the second part of the question. So it is, find the total number of push-ups performed by Nitesh up to the day his goal is achieved. टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स मतलब जैसे पहले डे में उसने 3000 किए, नेक्स्ट डे में 3005 किए, अनटिल द गोल इज अचीव्ड मतलब लास्ट में उसने पहुंचना था 3900 तक। तो इन सब का टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स, इन सब का सम। तो इन दिस केस यू विल यूज द फॉर formula for finding the sum. Alright, so let's solve this too. So second part of this question, you have to find sum, which is formula for to find the sum is n by 2 a plus l. L is the last term, and we have solved in the previous part. It was 181 divided by 2. A is 3000 and last term is 3900. So after adding this you will get 6900, and then divide 6900 by 2, you get 3450, and 3450 multiplied by 181, you will get 624450. So this is the total number of push-ups. Alright, so with this we have completed the sample paper. One sample paper स्टैंडर्ड वाला हमने कंप्लीट कर लिया है. सो आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.